एक्सरसाइज 14 ना, एक्सरसाइज 14.a, एक्सरसाइज 14.a ऑफ ओपी मल्होत्रा, ओपी मल्होत्रा ICSE, राइट? So beta, let's see question number 1. So what is question number 1 beta? In your textbook, this is 6x minus 8 divided by 3x square minus 8x plus 5, right? ये question है बेटा आपने. So now in this exercise हम बेटा ये सीखेंगे, we will try to learn substitution method. Okay निधि बेटा, we will try to understand what is the substitution method, right? Okay, so you see here in the numerator 6x minus 8 is given, right? And in the denominator 3x square minus 8x plus 5 is given. So you see, when you will differentiate this denominator term, you will get exactly what is written in the numerator. Correct or not? Correct? How you will get? So let's see how you will get. Let's suppose beta, I am letting 3x square minus 8x plus 5, this is equal to another variable that is t. Correct? Correct? अब निधि बेटा आप ये देख के मुझे बताइए बेटा, आप मुझे ये देख के बताइए कि विच इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वाई बेटा t क्यों डिपेंडेंट है और x क्यों इंडिपेंडेंट है? करेक्ट, यू आर करेक्ट. बट वाई बेटा? करेक्ट. मीन्स दैट this x is an independent variable because the choice of x depends upon our choice. We can take any x, but the value of t depends upon x. That is why t is known as dependent and x is known as independent. But what is differentiation? Differentiation is always with respect to an independent variable. Correct? So we'll try to differentiate with respect to independent variable. So independent variable is what? Dx. So we will take d by dx, not d by dt, because lot of students used to make mistake. वो यही पे mistake करते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता होता है कि सर d by dt करना है या d by dx करना है. ठीक है? So independent variable is x, that is why we are differentiating with respect to independent variable, that is x. Correct? ठीक है बेटा? So now let us differentiate. So 3x square minus 8x plus 5. So बेटा हमें d by dx दोनों साइड लेना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा. ऐसे. करेक्ट? करेक्ट. नाउ बेटा अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते बेटा क्या होगा? ये बेटा 3x स्क्वायर दिस विल बिकम 6x, 8x का दिस विल बिकम 8 एंड 5 डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, है ना नहीं बेटा? गॉट इट? सो दिस विल बिकम dt by dx. करेक्ट? अंडरस्टूड? तो बेटा यहाँ एक बात है, हमें क्या मिला? वी गेट 6 स्क्वायर माइनस 8, दिस इज इक्वल टू dt by dx. करेक्ट? अंडरस्टूड? नाउ हाँ बताइए बेटा. सर हमने इसमें वो डिफरेंशिएट क्यों किया जब हमें इंटीग्रेट करना है? तो जैसे इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन के अपोजिट होता है. करेक्ट. करेक्ट. हमें तो इंटीग्रेट करना है ना, बट व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन? दिस इज अ लाइक वेरी गुड क्वेश्चन. So बेटा why we are differentiating this thing? Because अभी आपको पता चलेगा कि why we are doing all this process, right? सर ऊपर का अलग डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे का अलग, जैसे लिमिट्स. नहीं 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 नहीं, we are not applying L hospital rule of the limits कि ऊपर का differentiation अलग नीचे का differentiation अलग. It is not that kind of thing. This is completely different concept and I'm telling you how you can actually do this. ठीक है? Now just focus on step by step learning. ठीक है बेटा? So this was your step 1. ठीक है? Assume a variable. ठीक है? You have assumed a variable. Now this is your step 2. You have differentiated with respect to an independent variable. Correct? Now you have to find. Correct. So now this is step 3. Correct बेटा? Independent variable नीचे आता है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में करते हैं. देखो d by dx है, इसीलिए हमने d by dx किया. करेक्ट. Now step 3 क्या बेटा? Step 3 है you have to find the value of dx. So I can cross multiply dx. ऐसे I can cross multiply. कर सकते हैं ना? So 6x square minus 8 into dx, this will be equal to dt. Correct? Correct? Correct. Now I can get the value of dx as dt by what? Dt by okay beta, like here we have done mistake, you know, while differentiating with respect to x, this will become 3 to the 6x, not 6x square. 6x. Correct? So we have to correct this. So this is dt by 6x minus 8. Correct?
Understood? So far so good. Now if you focus here, now let us divide this thing. All right, so let us solve like whatever we are doing. So what we have assumed, beta, we have assumed this thing, this complete thing as t. From here you can see, हाँ सर. so in place of this I can write as t, correct? Yes. 6x minus 8 will be written as it is, right? Now I have to put the value of dx. What is dx? Dx we have just found out, dx is nothing but dx is equal to dt by 6. dt upon 6x minus 8. Now if you can see, this 6x minus 8 and 6x minus 8 will get cancelled out, correct? हाँ सर. Now this integration reduces to this form, dt by t. And you know what is the integration of dt by t? You know what Yes sir. what will be सर the dt का तो t हो जाएगा और t इनवर्स का log e t. log et plus c, right? Now beta, what you can write? सर dt का तो 1 वो t हो जाएगा ना. Correct. बेटा अगर सिर्फ dt का होता, let's suppose you are integrating only this thing dt, so you will get t plus c because this will be treated as t to the power 0. And you know how you will differentiate? This is nothing but this is, देखो, this dt can be written as what? Here this is written as 1 into dt, and in place of 1 I can write t to the power 0. So again you have to use this wala rule, you know, x ka power n wala rule. So integration of this thing is nothing but x ka power n plus 1 divided by 1 n plus 1 plus c, correct? So t is the variable here, t is the variable here, just like x, like in previous question we got x as a variable, now t is a variable, correct? Yes. So same thing will happen, just like dx upon x, integration is what beta? This is log x plus c. So in a similar way dt upon dt will be also log e base t, ठीक है? log base e t, got it? Now beta in place of t हम फिर से अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देखो t हमने ये अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, so we will put this value 3x square minus 8x plus 5 plus c. This will be our answer. Got it? So integration of this big thing is this much. This is the answer. Have you understood? हाँ सर. Correct? So this is substitution method. You have substituted this big variable and then common terms get cancelled out. Got it? हाँ सर. Okay. So let us सर एक चीज देखूंगा इसमें. yes beta. Okay. भी जल्दी हो जाएगी सर. 15. Correct. सर हम लोग रिड्यूस सिलेबस देख लेंगे एक बार. Correct. Question सर, number 2. dx upon 3 minus 5x. dx upon 3x 3 minus 5x 3 minus 5. 3 minus 5x, right? अब देखो Yes, how, sir. Yes. how we will find this? How we will find this? सर पहले हम जो नीचे वाला है उसको किसी भी एक वेरिएबल की Correct. Correct. So let us assume 3 minus 5x is equal to 2, right? अब differentiate करना है हमें. This is your step 1. Step 1, correct? Now what is your step 2? Yes, sir. Differentiate करना है with respect to an independent variable, and x is our independent variable in this case. So d by dx दोनों तरफ लेंगे तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा. Got it? Taking d by dx both sides. Now बेटा differentiate करेंगे तो constant का differentiation, देखो बेटा differentiation distributive property होती है, बारी बारी से सबका differentiation होगा, correct? Yes, sir. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. ऑलराइट, सो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा -5 into 1 and dx will get cancel out. Okay, so this will become dt by dx, correct? Now if I'll cross multiply dx over here, then I can get the value of dx. So dx is nothing but dt upon -5, correct? हाँ सर. Correct. Now coming on to the question, what we have assumed, we have to put value of dx in terms of dt. Yes. So dt Yes. divided by -5, correct?
and in place of this term we have assumed as t, right? So put here t, Yes. right? So now this 1 upon minus 5 will come out of the integration because this is a constant. So dt upon t. So integration of dt upon t is nothing but minus 1 upon 5 log e t plus c. Now in place of t we will put the value. We have assumed this was equal to 3 minus 5x. So just put 3 minus 5x plus c. This is your final answer. Correct? Have you understood this? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है बेटा आपको? No, sir. गुड. व्हाट इज योर डाउट निधि बेटा? लाइक व्हाट इज योर डाउट? सर जो बस डिनोमिनेटर में आ रही थी वैल्यू उन्हीं को सब्स्टिट्यूशन में वो होगा किसी भी एक नहीं नहीं नहीं, गॉट इट बेटा, ऐसा नहीं होता है. देखो आपके इसी डाउट के लिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? देखो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर वाले को टी मानते हैं या हमेशा न्यूमरेटर वाले को टी मानते हैं. ठीक है बेटा, इसमें यह होता है कि अब हमें अपने हिसाब से अपना माइंड यूज करके सोचना है कि हम किसको टी मानना है और कैसे कैसे चीजें कैंसिल हो सकती हैं, कैसे हमारा जो वेरिएबल है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना. तो ऐसा कोई इन जनरल नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही मान के चलना है. हम न्यूमरेटर को भी मान सकते हैं टी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन नंबर 3, what we will assume 1 plus x as t, correct? You can assume this 1 plus x as t. Now if you differentiate beta d by dx, taking d by dx both side, right Nidhi beta? So what you will get? Differentiation of constant is 0. 1 by 2, I have only assumed 1 plus x as t, not complete power as t. This thing is there. You have to understood beta. This thing is there. I'm not assuming this complete thing as t. Rather than I'm assuming whatever written inside this root, I'm assuming that as t. Correct? yes. Okay. And अभी हम देखेंगे कि ये पूरे को अगर t मानते तो क्या होता. ठीक है, दोनों तरीके से करके देखें. ठीक है. सो बेटा देखो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. करेक्ट? ठीक है. yes. कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा dt by dx. बेटा dx को हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे. तो dx क्या हो जाएगा बेटा? dt upon 1. करेक्ट? dt upon 1. करेक्ट. Yes, sir. नाउ बेटा व्हाट यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1 plus x आई कैन राइट डायरेक्टली t. ठीक है. और dx की जगह पे क्या रख देंगे बेटा? dt upon 1. तो dt upon 1 dt एक ही चीज है. अब देखो बेटा, दिस कैन बी रिटन एज t का पावर 1 by 2. करेक्ट? इंटू dt. करेक्ट. अब नाउ बेटा अगर आप देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? दिस इज नथिंग बट x का पावर n का क्या होता था बेटा? इंटीग्रेशन x का पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 प्लस c. करेक्ट. तो इन अ सिमिलर वे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? t का पावर 1 by 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 1 by 2 plus 1 प्लस c. राइट. सो इसका आंसर क्या होगा बेटा? y इज इक्वल टू नथिंग बट t टू द पावर 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. Now beta I have to replace this t in terms of x. So we have assumed t as 1 plus x. So in place of t I can write 1 plus x. 3 by 2 and this will become 2 by 3 plus c. Answer. Correct? This is the first method. Now let us assume बेटा आपने जैसे पूछा था, let us assume this complete term as t. ठीक है. Second method. Assuming this complete term as t. ठीक है बेटा. So what I will get? Now in this case I am assuming 1 plus x as t. Correct? Now differentiate both sides, d by dx both sides. Taking d by dx both sides. तभी बेटा इक्वेशन बैलेंस होगा. तभी इक्वेशन बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा. ठीक है. Yes, sir. So this will become बेटा d by dx. So how much this will be? This will be इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, है ना बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग. Yes. सो देखो पहले क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d by dx 1 plus x का पावर कंप्लीट हाफ, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू dx dt. करेक्ट? ठीक है. Yes, sir. अब निधि बेटा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है. देखो अज्यूम दैट x इज योर थीफ. x अगर थीफ है तो इस थीफ तक अगर हमें पहुंचना है तो क्या करना होगा बेटा? Power आ गया. पहले पावर ब्रेक करना होगा. पहले पावर का ताला टूटेगा,
लाइक ब्रेक होगा लॉग, फिर उसके बाद हम x तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट पावर, देन वी विल रीच एट x, ठीक है। तो उससे पहले बेटा देखो, जब पावर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता है ना, डिफरेंशिएशन में डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स, और इसमें पावर माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, करेक्ट। क्योंकि क्या होता है बेटा, देखो कंफ्यूज मत होना, डी बाई डी एक्स अगर एक्स का पावर एन का करते थे तो क्या होता था बेटा, एन बाहर आ जाता था, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, करेक्ट। सो यही रूल अपना रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ बेटा अब किसका ताला टूटेगा, अब अंदर का ताला टूटेगा, यानी अंदर वाला लॉग टूटेगा 1 प्लस एक्स, करेक्ट। एंड दिस विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। नाउ लेट अस सॉल्व कंप्लीट दिस थिंग इनटू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो बेटा हमने कहां तक किया था, 1/2 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या था बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। एंड दिस वॉज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर x प्लस 1 का पावर 1/2, करेक्ट, नीचे चला जाएगा। एंड इसका जब करेंगे बेटा देखो 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 एंड इसका कितना आएगा 1, तो दिस कंप्लीट टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाई 1 dx by dx. So dx will get cancelled out. We are left with only dt by dx. Now if I cross multiply dx, so what will come, dt upon 1/2 multiply by x plus 1 का पावर हाफ, करेक्ट, करेक्ट निधि बेटा, करेक्ट। Now if you want to find dx, dx will be what, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा बेटा, एंड ये कंप्लीट टर्म पूरा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1/2 dt, करेक्ट, ठीक है। ये हमें dx की वैल्यू पता चल गई, गॉट इट, इतना समझ में आया यहाँ तक, इज इट क्लियर। एंड वी हैव अज्यूम 1 प्लस एक्स वॉज इक्वल टू t, करेक्ट। सो दो चीजें हमें पता है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन वॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स dx, correct. So now in place of this term I can write as t, correct, correct. Yes, sir. Now in place of dx I can put value of dx in terms of dt, so this will be nothing but 2 multiply by 1 plus x का power 1/2 into dt, correct. So 1 plus x का power half is nothing but this thing, this term. So again in place of this term I can write as t, correct. निधि बेटा, can I write t? क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स का पावर अगर हाफ लिखा है तो उसका मतलब यही तो होता है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है ना, और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने टी माना है, करेक्ट, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, दिस इज नथिंग बट दिस टी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यहाँ पे टी एक और है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डी टी। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 2, दिस विल बिकम टी स्क्वायर डी टी, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, टी स्क्वायर का टी क्यूब प्लस सी, करेक्ट, ये आएगा, गॉट इट। सो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3, इन प्लेस ऑफ टी आई कैन राइट व्हाट बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा बेटा हाफ, एंड उसका क्या है बेटा कंप्लीट क्यूब प्लस सी, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल कम आउट टू, करेक्ट। सो बेटा हमने क्या किया, वी गॉट द सेम आंसर, ठीक है, यू कैन चेक, वी आर गेटिंग सेम आंसर हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, सेम आंसर, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस कि हम क्या अज्यूम करना चाहते हैं, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर कैसी चीजें अज्यूम करके चलनी है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, योर थिंकिंग and how smart you can think बेटा, you have to think, है ना, कि how smartly I can assume my variable so that जो कुछ कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाए एंड हम आसानी से इंटीग्रेटेबल बना सके। मेन चीज क्या होती है बेटा, हमें फंक्शन को इंटीग्रेटेबल बनाना है, मतलब उसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि अगर कोई मुश्किल सा इंटीग्रेशन है, अगर उसको सब्स्टिट्यूट करके हम इजी बना सकते हैं और वो अगर वो इंटीग्रेबल हो सकता है तो क्या कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम बचेगा एंड वी विल गेट दी राइट आंसर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, correct. Okay, so now let's come to question number 4. So question number 4 is what, this is nothing but cosec square x divided by 1 plus cot x into dx. Can you solve this question?
हिंट क्या होगा दी बेटा? नाउ as you have told, you can assume 1 plus cot x as t, right? And then you have to take d by dx both sides. So when you will take d by dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सब मैं भूल गई थी कि डिफरेंशिएशन के भी याद रखना। कोई बात नहीं बेटा, देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d by dx of cot x is nothing but this is minus cosec square x. Correct? Correct? So taking d by dx both sides, so differentiation of 1 will be 0. Differentiation of cot x is what? Minus cosec square x, right? And this is nothing but this is equal to dt by dx. So now multiplying, cross multiply by dx, so I'll get this dx is nothing but cosec square x, dt upon cosec square x. Correct? Correct? Now in place of this thing 1 plus cot x, we have assumed this term as t, so we are writing as t, right? Now cosec square will be written as it is, जो numerator में बेटा उसको as it is लिखा रहने दो. Then this dx in terms of dt, so dt divided by minus cosec square x. Correct? So this common factor, this common term will get cancelled out, and we are left with here in the denominator minus 1. So minus 1 will come out, right? Minus sign will come out, and we are left with dt by t. Correct? Correct? Now integration of what? dt upon t is nothing but this is log t plus c, right beta? So actually this has two answers. You can write your answer in this way, log e t, in place of t I can write 1 plus cot x plus c, right? This is your first answer, right? Now you can get the another answer by, if you will do some manipulation. See beta, you know this property of log means that if something is written like this, a log eb, right? So what you can write this, you can bring a to the power of b, right? So this can be written as log e b to the power a. Correct? So you can write this term in this way and this term in this way, you know, both are equal. So in a similar way you can write log e t. Here minus 1 is written by default, right? Minus 1 is written. So you can bring this minus 1 towards this side to the power of t, so that you will get log e plus log e. So this will become plus, and this will become t to the power minus 1. And then t to the power minus 1 can be written as 1 by t plus c. Now in place of t you can substitute, this is nothing but log e divided by 1 plus c. This will be your answer. So both the answers are correct, right? Here plus sign will come, Yes. and here minus sign was there. So I hope you have understood this question. Understood? Yes. Are you sure you have understood beta? समझ में आ गया? Are you sure? हाँ सर, हाँ सर। Good. Okay. देखो बेटा, like how we will solve this question. Question number 5. What you can assume beta, you can assume this as your complete variable cos x plus sin x. You can assume this as t. Correct? Right? Now beta, taking d by dx both sides. So taking d by dx both sides, what you will get? Beta, why we are taking d by dx both sides? तभी बेटा इक्वेशन बैलेंस रहेगा, है ना? We have to take d by dx both sides. ठीक है? अब बेटा देखो, d by dx अब बेटा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की. पहले cos x का करेगा, फिर d by dx इसका होगा, sin x का होगा. करेक्ट? So this is nothing but this is dt by dx. Now beta, differentiation of cos x is nothing but this is minus sin x. Correct? Differentiation of sin x is plus cos x, and this is equal to dt by dx. Now beta, this term can be written as cos x minus sin x. Correct? And this is equal to dt by dx. Now you can get the value of dx. Dx is nothing but dt upon cos x minus sin x. Correct? Yes, sir. You can get the value of dx from here, right beta? Now let us come back to the question. We have assumed numerator as t, so we are writing this complete term as t. Put cos x minus sin x as it is, right? And put the value of dx. What is dx? We have just calculated. Dx is nothing but dt upon cos x minus sin सर x. ये मैंने किया है। Good. सर फिर ये नीचे वाला कट जाएगा, इसका फिर से आ जाएगा।
करेक्ट एंड करेक्ट एंड डी टी अपॉन टी विल बी व्हाट, क्या होगा बेटा इसका आंसर, क्या होना चाहिए, एनी आइडिया? log e t plus Correct. So this will be log e t plus c. So in place of t we have to put value of t. What is t? T is nothing but cos x cos plus x sin x. plus sin x, and log will come. Log. So this is log, है ना, log e. Okay, let me just write in a मेरे को याद है clear way. So क्या होगा बेटा इसका आंसर, log e cos x plus sin x plus c. Correct? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी हाँ बेटा पूछिए. सर मैथ्स की नहीं है लेकिन सर Question number 6. सर इसमें 3 to 1 क्यों आता है लिखो ओके ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे निधि बेटा, एनी आइडिया कि sec x प्लस tan x को t माने या फिर पूरे log को sec x प्लस tan x को माने, या फिर कैसे करेंगे, एनी आइडिया, कुछ आइडियाज दो बेटा. रिटर्न को टी नहीं बेटा ऐसे ब्लाइंडली, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे नहीं बेटा ऐसे ब्लाइंडली नहीं सोचना है हमें. हमें सोचना है बेटा कि देखो हमें इस तरीके से अज्यूम करना है. देखो बेटा मैं आपको हिंट बताता हूँ एक, ठीक है. आप जो भी डी बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू आती है आप देखते हो हमेशा कैसे आती है, डी टी अपॉन समथिंग आती है, ठीक है, ठीक है. अब आप अगर यहाँ डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन समथिंग रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, तो वो वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल होनी चाहिए. समझे बेटा, ओके अंडरस्टूड. सो हमें इस तरीके से अज्यूम करना है कि यहाँ जो डी टी के नीचे आए वो वाली चीज एंड यहाँ पे कोई अगर कॉमन फैक्टर हो तो कैंसिल हो जाए. तो बेटा जनरली हम इस तरीके से अपना अज्यूमशन करते हैं वेरिएबल का, कि मतलब हमें कौन से वाले टर्म को टी मानना चाहिए. ठीक है, गॉट इट, ठीक है. सो इन दिस केस अगर हम पूरे को टी मान लेंगे बेटा, सो आई डोंट थिंक सो लाइक विल बी रीचिंग एट द राइट कंक्लूजन. सो इसलिए बेटा आपको सोचना पड़ेगा कि कितने टर्म को हमें मानना है, राइट. एनी आइडिया, एनी केसेस कैसे करें, करेक्ट. एंड देन बेटा पर अगर ये डी टी अपॉन समथिंग आया तो बेटा ये लॉग में है sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे कैसे होगा, एनी आइडिया? चलो हम एक बार करके देखते हैं. लेट्स सी इफ आई अज्यूम दिस log e sec x प्लस tan x, this complete term as t, right? So now beta taking d by dx both sides, log e sec x plus tan x, this is equal to dt. Correct? करेक्ट नहीं थी बेटा, बिकॉज वी हैव टू टेक डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, नो, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा. अब बेटा बताओ कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन. बेटा अगर मुझे x तक पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले बेटा लॉग का ताला तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, ये पूरी चीज लॉग के अंदर प्रोटेक्टेड है. पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का ताला टूटेगा, फिर बेटा किसका ताला टूटेगा, फिर इस कंप्लीट टर्म का ताला टूटेगा, तब हम बेटा x तक पहुंच जाएंगे. करेक्ट और नॉट? तो बेटा सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कंप्लीट होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन sec x plus tan x. Correct? Correct. Now we have to differentiate. बेटा now we will differentiate d by dx, अंदर वाला टर्म जो बचा हुआ है, यानी कितना होगा बेटा sec x plus tan x. Correct? Correct. And this complete term will be equal to dt by dx. Correct? ठीक है, देखो बेटा ये क्या होगा, 1 अपॉन sec x plus tan x as it is लिखा रहेगा. Got it? एंड बेटा ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है बेटा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. करेक्ट. ये जब इसका करेगा डिफरेंशिएशन सिर्फ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स प्लस इसका करने के बाद में बेटा अब ये टेन एक्स का करेगा. टेन एक्स का कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स. करेक्ट. ठीक है, एंड दिस कंप्लीट टर्म विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, अब नाउ बेटा अगर आप यहां से ध्यान देखो तो आई कैन टेक कॉमन सेक एक्स फ्रॉम द न्यूमरेटर, आई एम टेकिंग कॉमन सेक एक्स. ठीक है, तो अंडर वाला टर्म क्या लिखा है बेटा, sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय कंप्लीट टर्म sec x प्लस tan x, एंड दिस विल बी इक्वल टू dt बाई dx. कैसे हुआ बेटा, ये देखो ये हमारा पूरा टर्म डिनोमिनेटर में है, ये कंप्लीट टर्म बेटा हमारा किस में है, न्यूमरेटर में है. तो हमने क्या किया है, न्यूमरेटर से sec x कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना sec x कॉमन, तो sec x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, sec x प्लस tan x बचेगा. करेक्ट? करेक्ट और नॉट बेटा? नाउ दिस sec x प्लस tan x एंड sec x प्लस tan x विल गेट कैंसिल आउट. करेक्ट, कॉमन फैक्टर विल गेट कैंसिल आउट. करेक्ट और नॉट? नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली
this term, that is dt by dx, is nothing but sec x, correct? हाँ सर. Now I can find value of dx. Dx is nothing but dt upon sec x, correct? Correct. Yes sir. So now in place of now coming on to this question, we have assumed this complete log term as t. So in place of this term I am writing t, right? Now in place of dx I can substitute dx. Value of dx, dx is nothing but dt upon sec x. So this is dt upon sec x. So now beta, this sec x and sec x will get cancelled out and we are left with t dt. And you know what is the t to the power 1, and if t to the power 1 is there, so इसका क्या होगा बेटा, t to the power 1 plus 1, पावर में एक 1 ऐड हो जाएगा और 1 plus 1 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, t to the power 2 divided by 2 plus c. एंड t की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, हमने जो सब्स्टिट्यूशन माना था, यानी क्या हो जाएगा, log e sec x plus tan x, इसका क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. दिस इज इक्वल टू y. यही आंसर आएगा हमारा. गॉट इट? हैव यू अंडरस्टूड बेटा? Yes sir. सो बाय प्रैक्टिस वी विल कम टू नो कि हमें इंट्यूशन कैसे आता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें किसको टी मानना है, किसको टी नहीं मानना है. राइट बेटा? Yes. गॉट इट? गुड. सो नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. So what is question number 7? Any idea? Question number 7 is very easy, I guess. Question number 7 is this much. Can you solve this integration? हाँ sir. Solve this beta. Like you can directly solve it without method of substitution. You can directly assume this this x can be written as x ka power 1 by 2 dx, and then directly you can get 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 plus c. No need to assume variables, right? हाँ sir. But for your practice, you can try to solve by substitution method. So this is your homework problem. Homework problem. Try by solving substitution method. Try by solving substitution method. Correct? Yes sir. Now let us come to the next question, that is question number 8. Right? How we will solve this question? Question number 8. X multiply by e to the power x square dx. How we will solve this question beta? Sir इसमें चलो I'll tell you. हम बेटा कैसे सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से मानते हैं. 2x स्क्वायर ले लेंगे. देखो हम 2x x स्क्वायर कैसे लेंगे बेटा, मतलब यहाँ तो x स्क्वायर है, यहाँ x है, 2x स्क्वायर कहाँ है? नहीं से डिफरेंशिएट कर देंगे x ex 2 का, मतलब ex स्क्वायर कर से डिफरेंशिएट कर देंगे. देखो अभी भी मेरी बात समझो, करेक्ट, ठीक है. अभी हम जो आपने बोला बेटा उस पे भी सोचेंगे, ठीक है. बट पहले मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो बेटा, t को कुछ ऐसे मानते हैं वेरिएबल, और मैं चाहता हूँ कि हम dx की जब हम वैल्यू निकालें तो वो dt अपॉन समथिंग आए, है ना. डिफरेंशिएट करने के बाद में dx की वैल्यू dt अपॉन समथिंग आए, तो उसके बाद में जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt, तो यहाँ जो एक टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कैंसिल हो जाना चाहिए इन दिस वे. ठीक है. सो नाउ आपको ये सारी चीजें पता है. अब बेटा उस हिसाब से मुझे सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए, हमें किस वाले टर्म को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ताकि हमारा ये जो x है या e का पावर x है, दोनों में से कोई एक कैंसिल हो जाए एटलीस्ट, अगर एक को t मानते हैं तो. कैसे करें अज्यूम? एनी आइडिया? सब वही करते हैं ex. देखो कंप्लीट e का पावर x स्क्वायर को अगर मानना चाहते हो बेटा तो वी कैन राइट, चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट, देयर आर टू वेज. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट e का पावर x स्क्वायर कंप्लीट एज t, राइट. या फिर बेटा सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका, व्हाई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस कंप्लीट टर्म रादर दैट सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर एज t, राइट. टेक d by dx both sides. ऑलराइट नहीं बेटा, टेक d by dx both sides. करेक्ट. Now if we differentiate x का पावर 2, so x का पावर 2 का क्या होगा बेटा, 2x होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है. और dx dx कैंसिल हो जाएगा, dx dx यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू dt by dx. करेक्ट. सॉल्व, गेट द वैल्यू ऑफ dx. तो dx इज नथिंग बट dt अपॉन 2x. करेक्ट. करेक्ट मेरी बेटा, करेक्ट.
So this term x will be multiplied as e ka power t divided by, we'll put value of dx. Dx is nothing but dt upon 2x, correct? So this x and x will get cancelled out, right? Now beta take this constant term 1 by 2 outside and integrate it. So this will become e का power t is nothing but e to the plus c, right? क्योंकि बेटा e का पावर t का e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, e का पावर x ही होता है, करेक्ट? ठीक है। एंड बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो जिस चीज का वेरिएबल हो उसी का फंक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेरिएबल x था तो फंक्शन भी किसका था बेटा, फंक्शन भी dx का था, है ना मेरी बेटा। सो इन अ सिमिलर वे अगर फंक्शन t में है तो आपका जो d बाई जो dt है वो भी कितना होना चाहिए बेटा, t के टर्म्स में होना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। वेरिएबल t में था तो हमारा जो हमारा फंक्शन होगा, इंटीग्रेटेबल फंक्शन होगा, वो भी कितना होना चाहिए बेटा, वो भी t में होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट बैक, t की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, x स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस c, y इज इक्वल टू, दिस इज आवर फाइनल आंसर, गॉट इट, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस कम to the next question, that is the question number 9. How we will solve this question number 9? E to the power m tan inverse x divided by 1 plus x square dx. किसको मानना पड़ेगा बेटा? How we will assume your variable? बेटा अब आपको सोचना है कि कैसे हम कौन से वेरिएबल को लें इस वाले क्वेश्चन में। यू नो बेटा, आई विल गिव यू अ हिंट। बेटा उससे आंसर ही नहीं आएगा, है ना, उससे आंसर नहीं आएगा। सो यू हैव टू थिंक बेटा, ऐसे ब्लाइंडली हम नहीं ले सकते, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, tan इनवर्स x अगर हम इसको y मान ले बेटा, है ना, तो हम जानते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा बेटा, इसका d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हमने पढ़ा था बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, tan इनवर्स x को आप t मान लो, करेक्ट, करेक्ट। नाउ इफ यू अज्यूम दिस एज t, आप बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे, d बाई डी एक्स लोगे दोनों तरफ, tan इनवर्स x and this will be dx by dt, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई d बाई डी एक्स ऑफ x। तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, है ना, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। सो गेट द वैल्यू ऑफ dx इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dt, करेक्ट। क्योंकि बेटा यहाँ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, सो dx को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड इस वाले टर्म को बेटा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे न्यूमरेटर में। इसमें कोई डाउट है इस वाले स्टेप में? dx की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ बेटा इफ यू सब्स्टिट्यूट, देखो दिस टर्म हमने इसको सिर्फ tan इनवर्स x को क्या माना था, t माना था, करेक्ट। सो t आ जाएगा, इसको एज इट इज लिखा लेने दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एंड इन प्लेस ऑफ dx आई कैन राइट dx की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dt। सो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dt। So this 1 plus x square and 1 plus x square will get cancelled out and we are left with e to the power m t dt, right? So beta please do not worry, when I was a student, when I was at your age, तब बेटा मुझे भी प्रॉब्लम आती थी शुरू में कि मुझे समझ में नहीं आता था कि किसको कैसे कैसे हमें अज्यूम करना है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट वरी, आप बेटा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता रहेगा, राइट, ठीक है, ठीक है। आप अभी ये सारे जो क्वेश्चन है बेटा ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, राइट। तो बेटा आपको भी वो ग्रैस्प हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे बेसिक्स काम आता है। अब हमें e का पावर m t का करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, अगर e का पावर mx का अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या होता, देखो e का पावर mx का डिफरेंशिएशन e का पावर mx ही होता और m से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना, ऐसे। तो अगर बेटा इंटीग्रेट करते हैं तो e का पावर m t का e का पावर m t हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे m से मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में m से डिवाइड हो जाता है प्लस c, करेक्ट, बेसिक्स। तो t की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, t की जगह पे हमने क्या माना था, tan इनवर्स x, तो दिस विल बी tan इनवर्स x, नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस c,
This will be your answer. Correct? Got it? Yes, sir. Have you understood? हाँ सर. Good. Question number 10. So this question number 10 is your homework problem. I'm writing this as, so try to solve all the question which I'm giving beta and try this problem as your homework problem. Right?